Welcome everybody to the fifth episode of Sapient Wired Conversations. As we all know that in Sapient Conversations, we have always tried to bring in different perspectives. We have been having different speakers from the investment world. We had Mr. Nilesh Shah, who's the MD of Kotak. We had Mr. Ramdev Agarwal, the MD of Motilal Oswal Financial Services. We had Mr. Shailesh Rajbhan, Deputy CIO at Nippon Asset Management. We had Mr. Navneet Munot, ED at SBI. And there's too much of investment talk which was going around. So we thought, why not have a different perspective? So today we will talk on the biggest asset class that a person has, relationship, रिश्तों पे बात करते हैं आज. I'll now request my senior partner Amit Bhai to speak a few words and take the event forward. Good evening, everyone, and thank you for joining this live on Facebook as well as on Zoom. Thank you, Prasoon Saab, for giving us this opportunity to host you. और आज अक्षय तृतीया है तो सब लोग सोना खरीदते हैं. We thought probably we'll have the man with golden words who can probably talk on the best golden asset class, which is relationship in every family. And we as a family at Sapient truly believe that having Prasoon Joshi on Akshay Tritiya is definitely the golden moment for us. Prasoon sir, we have Amit Basu, who is going to be the compere and the MC for this evening. So I will ask Amit, you can start the event, and all the best. Pallav, we can drop as panelist and become attendees. Thank you so much. Before I start, Pallav, can you show the AV introduction, please? Pallav, you need to unmute yourself. Clio, Sparks, and plethora of others. He has also authored 4 books, his first at the age of 17. He has been the Titanium Jury President at Cannes 2014, the first Asian to be honored so. Prasoon has also been designated a young global leader by the World Economic Forum. Marrying creativity with scale, he's given McCann's work in Asia a distinct cultural edge, making it a powerhouse that not only has the pulse of the market, but also its consumer. Through iconic campaigns like Coca-Cola, Nestle, Happy Dent, Saffola, Dettol, he is not only a prolific writer-poet, but also an award-winning song and screenwriter. His films like Rang De Basanti, Tare Zameen Par, Bhag Milkha Bhag, Neerja, and Manikarnika have garnered filmfares and screen awards, along with moving hearts and impacting mass consciousness. He has also created campaigns for humanitarian causes with UNICEF, Pulse Polio, HIV Breakthrough, UN Stand Up Against Poverty campaign, the Swachh Bharat Initiative, and the critical malnutrition campaign for the government of India. His columns on business and social issues across mainline and regional publications are known for their intricacy of thought and potency of phrase. Through his multifaceted content creation across the fields of writing, music, and advertising, Prasoon has positively impacted the public consciousness and has emerged as an inspiring socio-cultural voice that resonates across segments. Amit Basu sir, now it's over to you. Yeah, thank you. नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष वेबिनार में.
हम ऐसे एक शख्सियत के साथ रूबरू हैं जिन्हें कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक श्री प्रसून जोशी हमारे साथ हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आपने कई वर्षों से हमारे दिलों पर राज किया है अपनी कलम और कला के जरिए, कि आपसे आज हम लोग मुखातिब हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इस वेबिनार सेपिएंट फैमिली की तरफ से। तो शुरुआत करते हैं आज के इस माहौल में जहां हम सब लोग एक ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं। मुझे याद आता है एक बड़ा पुराना शेर है कि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। ऐसी कुछ परिस्थिति है, और इस मामले में आपने अभी एक कविता का सृजन किया है और हम लोगों ने देखा है वो कविता। तो अगर आप वो कविता से शुरुआत करें, जो कि एक उन लोगों को हौसला अफजाई होगी जो इस संकट का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और आप दीपक हूँ से अगर आप इस सेमिनार की शुरुआत करें तो बड़ी खुशी होगी सर। दीपक हूँ, एक पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सेपिएंट के सभी आप लोग जितने भी लोगों ने कष्ट उठाया है, और इस समय एक ऐसी घड़ी है इस पर शायद हम लोग बहुत समय से ये प्रतीक्षा कर रहे थे या अपेक्षा कर रहे थे कि मैं स्वयं वहाँ आऊँगा और आप लोगों के साथ बैठकर रूबरू चर्चा, शरीर चर्चा होगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि ह्यूमन स्पिरिट जो है एक अनोखी चीज़ है। अगर आप इतिहास पर दृष्टि डालें तो मानव जो है वो संघर्षों का ही दूसरा नाम है, और वो किसी न किसी तरह से संघर्ष करता ही रहता है। और हमारे देश में तो लोगों को संघर्षों की आदत है, लेकिन इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं वो कम से कम इस जनरेशन के लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। हमें कोई चीज़ शायद बचपन से जिस तरह से हमारा लालन पालन हुआ है, जिस तरह से वी हैव बीन ब्रॉट अप, आई डोंट थिंक वी हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं हमने एक कलेक्टिव विश्वास की आवश्यकता है, और इसीलिए मैंने ये दीपक कविता लिखी थी कि दीपक एक ऐसा दीपक जो दूसरों के लिए जलने की कोशिश करता है। कि दीपक हूं मैं लालायित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। ज्योति रीति है मुझे निभानी, ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, मैं उन्नत अंगार भाल हूं। बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है। बस यह लक्ष्य लिए अर्पित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। आलोकित करना है पथ को मुझे निभाना अग्नि शपथ को, आलोकित करना है पथ को मुझे निभाना अग्नि शपथ को, मुझे दीप कर्तव्य निभाना, मुझे भोर तक चलते जाना। इसी बोध से मैं कृतकृत्य हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप चलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस ओपनिंग के लिए, क्योंकि सब लोगों को एक प्रेरणा की जरूरत है, और मेरे ख्याल से दीपक एक काफी प्रसिद्ध मेटाफोर है इस तरह का संदेश देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, दीपक की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि मैं उन लोगों को एक ट्रिब्यूट दूं जो लोग हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जी। ये मान लेना कि पता नहीं हमको आदत पड़ जाती है, हमें लगता है सर्विस कोई करेगा, लेकिन ये नहीं भूल जाते हैं कि वो करने वाले हमारी तरह इंसान हैं, और जो हम आज आप और मैं बात कर पा रहे हैं इस समय भी कोई हमें पीछे से सपोर्ट कर रहा है, कोई सर्विस को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ईंधन जल रहा है, इलेक्ट्रिक बिजली चल रही है,
पानी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है और आप और मैं रूबरू एक दूसरे से मुखातिब हो पा रहे हैं। मैं अक्सर सोचता था किस तरह ये रेल जीवन की हमेशा गुनगुनाती गीत गाती पटरियों पर चलती रहती है। मैं अक्सर सोचता था किस तरह ये रेल जीवन की हमेशा गुनगुनाती गीत गाती पटरियों पर चलती रहती है, उगलती है धुआं और खांसती भी है, मगर फिर भी पहुंच जाती है मंजिल पे, हमेशा मुस्कुराती है। मैं अक्सर सोचता था काले काले इन अंधेरों में दिए जो टिमटिमाते हैं, जलाता कौन है उनको। मैं अक्सर सोचता था जब भटक जाता था रस्तों पे, कहाँ से लोग आते हैं मुझे रास्ता बताते हैं, या फिर संग बैठ के जो बांट लेते हैं मेरी मुश्किल, बिना कुछ चाहे मुझसे सुर में मेरे सुर मिलाते हैं। मैं अक्सर सोचता था दर्द ही लिखा है चेहरों पर, कहीं पीड़ा की सरसों खेत में एक दुख सुनाती है, कहीं पर घाव रिश्ते हैं, कहीं पर चोट कोई लब से आंसू बहाती है, मगर फिर भी मेरे होंठों पे ये मुस्कान कैसे है। निराशा है अगर इतनी तो फिर अरमान कैसे है। मैं सपने देखता हूं फिर भी उनमें रंग भरता हूं, है मेरे पंख भीगे फिर भी मैं परवाज करता हूं। मैं अक्सर सोचता था सच मगर ये आज ही जाना, है कुछ दिल जिनमें कुछ दिल ऐसे जिनमें धड़कने मेरी सलामत है, जो मेरी सांस में भरते हैं खुशबू गीत रचते हैं, जो मेरी जिंदगी को प्यार से महफूज रखते हैं। मैं आज उन कदमों को चूमूंगा, उनकी धूल माथे पर सजाऊंगा, रचाऊंगा, सलामी उनको दूंगा मैं, सलामी उनको दूंगा मैं। बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर हमारे आज शाम का जो टॉपिक है, इनवान है, वो है रिश्ते। और जो पहला सवाल इस संबंध में आपसे पूछना चाहता हूँ ये वो है कि मनुष्य जब धरती पे आता है और जैसे ही जन्म लेता है, उस जन्म के साथ साथ रिश्तों का भी जन्म हो जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य की चेतना जागती है, वो और नए रिश्तों का निर्माण करता है। कई सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो पहले से लिखे हुए होते हैं, जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, और बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम भावनात्मक रूप से जुड़ने के कारण बनाते हैं। तो कई बार ये मन में सवाल उठता है कि रिश्ते क्या भावनाओं से बनते हैं या भावनाओं की वजह से रिश्तों का जन्म होता है? तो कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है और जिंदगी में महत्व किसको ज्यादा देना चाहिए? देखिए, इंसान की यही खूबसूरती है कि उसके जीवन में रिश्ते। अब क्या रिश्ते भावनाओं से जन्म लेते हैं या रिश्तों से भावनाएं जन्म लेती हैं? ये बहुत ही सुंदर सवाल है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएगा, क्योंकि एक मूल आवश्यकता तो मैं समझता हूं मनुष्य की है, वो किसी न किसी रूप में दूसरे से जुड़ना चाहता है। अब आध्यात्मिक रूप से अगर चले जाएंगे, स्पिरिचुअली, तो शायद आप कहेंगे सब एक ही से उपजा हुआ है, सब कुछ अंततः एक में ही विलीन हो जाता है और एक ही ऊर्जा स्रोत का प्रस्फुटन है, एक ही ऊर्जा सोर्स से सब निकला हुआ है। तो हम तो वी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कॉस्मिक माइंड। अगर वो सब है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं जुड़ाव तो होगा ही। अगर आप और मैं एक ही है, आप और मुझ में मूल तत्व एक ही है, तो मुझे एक चुंबकीय आकर्षण आपकी तरफ महसूस होगा और वहां से रिश्ते जन्म लेते हैं। जैसे जैसे लेयर्स बाय लेयर जिंदगी अपना रूप, अपना संरचना करती है, रिश्ते और गहरे, कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होते चले जाते हैं। एक माँ और बेटे का रिश्ता अगर आप देखें, सबसे मूल रिश्ता जिसे मैं समझता हूं, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा लिखा भी है जी। मुझे लगता है कभी किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं होता है वो रिश्ता, और एक सतत प्रवाहित धारा की तरह वो हमारे जीवन से हमेशा जुड़ा रहता है। उसको थोड़ी देर तक अगर हम थोड़ी देर अलग रखते हैं तो बाकी सब रिश्ते जो है उनकी अपनी एक जरूरतें होती, समझ की आवश्यकता होती। आप एक चाहना होती है आपके अंदर कि मुझे समझा जाए। Another relationship which is very very important relationship is the man and woman's relationship, जहां पर समझे जाने की
अपेक्षा होती है। मैंने एक गीत लिखा भी था कि सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, तुम ना सीखो तुम हवा को सननन सन सननन सन कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, हाँ जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना। तो इसमें देखें आपकी ये भाव की कैसे समझा जाना और जी। पढ़ लिया जाना, जी एक अपेक्षाएं आती हैं रिश्तों में। तो रिश्तों की जितनी आप चर्चा करेंगे उतना उसमें आपको उसमें मुब्तिला हो जाएंगे, उसमें आपको नए नए रंग दिखाई देंगे और नए नए कलर्स दिखाई देंगे, नए नए लेयर्स दिखाई देंगे। और ये तो है ही कि इंसानी रिश्ते ऐसे हैं कि अगर आप ऑनेस्टली उसको इंटेंट पे मैं जाता हूँ, देखिए अगर आपका इंटेंट है कि मैं रिश्ता निभाऊंगा तो आप निभा लेंगे, जी और अगर इंटेंट में कहीं कुछ थोड़ा भी लाग लपेट है, थोड़ा अनिश्चय की स्थिति है, तो वो भी दिखाई देगी। तो डीप डाउन अगर आप निभाना चाहते हैं तो रिश्ते निभा लेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं ये मानता हूँ, आई एम होपफुल दैट रिलेशनशिप्स आर लॉन्गर लास्टिंग। मैं ये बिलीव करता हूँ कि रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं और धीमी आंच पे पकते हैं। जी धीमी आंच पे रखते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसी सिलसिले में आपसे अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ मनुष्य को तोड़ देता है, ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो कि मनुष्य को हर हाल में संजो कर रखना चाहिए, और उससे संबंधित अगर एक कोई कविता आपके जहन में आ रही हो तो सुनाएं। देखिए एक मैंने गीत लिखा था बहुत पहले, एक एल्बम आई थी अब के सावन, मेरे अर्ली डेज का काम है ये, और उसमें मैंने एक गीत लिखा था रिश्तों के ऊपर ही कि भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तू संभल संभल, डोर ऐसी जोड़ना जो गांठ मन की खोले, डोर ऐसी जोड़ना जो गांठ मन की खोले, एक रिश्ता जो तेरे दिल का कोना छू ले, कांच सा नाजुक नहीं, कांच सा नाजुक नहीं, शीशे जैसा साफ, भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, रिश्ता जो चाहे रूठ जाए पर मनाने आए, रिश्ता जो चाहे रूठ जाए पर मनाने आए, आंखों में हो सीलन मगर मुस्कुराने आए, पत्तों सा ना उड़ जाए, शामों सा न ढल जाए, बुझते हुए रास्तों पे उम्मीद सा जल जाए, फूल सा मुरझा न जाए, खुशबू की हो बात, रिश्ता। अब एक जो नए रिश्ते की बात आज हम कर रहे हैं, रिश्ता वो जिसमें दूरियां हो, सांस आए जाए, तेरा भी अपना गीत हो, वो भी कोई गीत गाए, रिश्ता वो जिसमें दूरियां हो, सांस आए जाए, तेरा भी अपना गीत हो, वो भी कोई गीत गाए, खुद को मिटाना ना चाहे, तुझको बदलना ना चाहे, जैसा भी है तू तुझको वैसे ही जो अपनाए, हो ना दियारा घना रात का हो ख्वाब,
भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तो संभल समझ के। तो आजकल की दुनिया में जहाँ इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है सब कुछ, भौतिकवाद हावी है। किसने कहा था कि कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये ज़रूरतों का खुलूस है या मतालबों का सलाम है, यूं ही रोज मिलने की आरजू, बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू, क्या बात है। आफतें नहीं बेगरज उसे आपसे कोई काम है। तो रिश्ते आजकल दिल के बजाय ज़रूरतों से बनते और बिगड़ रहे हैं। तो ये रिश्ते कैसे पहचाने जाएं कि ये रिश्ते क्या दिल के रिश्ते हैं या ये ज़रूरतों की वजह से बन रहे हैं, और ये क्या रिश्तों का एक पोशाक पहन के हमें गुमराह कर रहे हैं? मैं उनको रिश्ते नहीं कहता हूं। वो तो जरूरतें हैं, आपने पहले भी कहा। जरूरतें कब नकाब पहन के आती हैं? जरूरतें तो साफ नजर आती हैं। जी। तो उनको रिश्तों का नाम देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम रिश्ता कहते हैं तो उसमें खनक होती है शब्द में। जी। वो खनक अगर आप सुन पाते हैं तो जब तक वो खनक सुनाई देती है तब तक वो रिश्ता होता है। उसमें ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग आपसे सिनिकल भी है, वो लोग आपसे ये कह सकते हैं कि बिना लेन देन के कुछ नहीं होता। एंड वी हियर कि भैया देयर आर नो फ्री लंचेस। और सी ये क्या है ना कि कहीं ना कहीं हम मानव सभ्यता ने जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें कहीं सब कुछ जो एक्सपीरियंशियल जिसकी वैल्यू थी जी। तो हमने एक्सचेंज वैल्यू में कन्वर्ट किया। अगर किसी के बदले में कुछ नहीं मिलता तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। क्योंकि अगर आप किसी से कहें कि मुझे अच्छा महसूस होता है तो वो आपसे कहेगा इसको क्वांटिफाई करो। जी बिल्कुल। हाउ डू यू क्वांटिफाई व्हाट यू फील? मेजर एंड क्वांटिफाई। मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूं कि भाई किसी ने मुझसे एक अजीबो गरीब शख्स से पूछा कि आप जो कविताएं लिखते हैं इनमें इफ यू नो डाइसेक्ट इट एंड मोनेटाइज इट, हाउ मच पर वर्ड वुड फेच यू? मैंने कहा इसका आंसर कैसे दिया जाए? अब देखिए सोच कैसी हो गई है कि आप कह रहे हैं कि भाई मुझे बताइए पर शब्द आप कितना कमाते हैं अपनी कविता से। एक चीज जिसकी लाइफ वैल्यू है। भाई आज हुआ क्या कि कविता सबको पसंद है लेकिन पीपल थिंक इट शुड बी फ्री लाइक फ्रेश एयर एंड वाटर। कोट तो सब करना चाहते हैं। मैं मैनेजमेंट स्कूल में था तो वहां भी मैं देखता था जो बड़े लीडर्स आते थे या कोई कंपनीज के सीईओज वगैरह वो भी कविताओं से कोट करते थे। लेकिन पता नहीं हमें क्यों परहेज रहा कि हम ना कविताओं को, ना जीवन जीने को, ना रिश्तों को कभी पढ़ाते नहीं। हम बताते नहीं, उसकी समझ नहीं, उसकी सीख नहीं देते। और एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जहां हम स्किल्स तो सिखाते हैं लेकिन जीना नहीं सिखाते। और जीना नहीं सिखाते तो रिश्तों की अहमियत भी नहीं सिखाते। और वो एक ऐसा समाज है जहां पर खुद ही आपको फिगर आउट करना पड़ता है क्योंकि आपके संस्कारों में ट्रांजैक्शन सिखाया जाता है, आपके संस्कारों में मोनेटाइज कैसे करना है वो सिखाया जाता है। भाई व्हाई शुडंट दे टीच पोएट्री एंड हाउ टू लिव लाइफ इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स? क्योंकि वो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन वो हम शायद कहीं दरकिनार कर जाते हैं और इसी वजह से यू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग थ्रू वन लेंस। एंड लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि आपके कई परिवार इस वक्त जुड़े हुए होंगे, साथ में बैठे होंगे और वो एक दूसरे की तरफ देख करके शायद बहुत फख्र से ये कह सकते होंगे कि नहीं, इस सब के बावजूद मेरी जिंदगी में रिश्ते हैं जो अनकंडीशनल है, जो बेशर्त हैं, जिनके 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 होने के पीछे कुछ शर्तें नहीं हैं। और मैं आई कैन काउंट अपॉन दोज पीपल, आई कैन काउंट अपॉन दोज रिलेशनशिप। आज भी आपके सामने ऐसी कल्पना करेंगे आंख बंद करके तो आपको ऐसे चेहरे याद आ जाएंगे। शायद आपकी बेटी का चेहरा हो, आपके बेटे का हो, आपकी माँ का हो कि यार मैं इसके लिए जान दे सकता हूं। कहाँ ट्रांजैक्शन है वहां पर? वहां मुझे लगता है ह्यूमन बीइंग जो है वो इस सब को
कूद के फांद के रिश्तों की का परचम लेके खड़ा हो जाता है बार बार, और हमको दूर से फड़फड़ाता वो परचम दिखाई देता है, झंडा दिखाई देता है रिश्तों का, और लोगों की आंखों से छलकता हुआ दिखाई देता है। और यही होप है कि ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव डिस्पाइट so much of cynicism around us, so much of bitterness which we encounter every day, so much of transaction we encounter every day. We still can proudly say we are humans. जिस दिन हम पूरी तरह ट्रांजैक्शनल हो जाएंगे, उस दिन हम अपने को मनुष्य और मानव कहने के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। सर, आपका रिश्ता कई सारे क्षेत्रों से है। आपने एड में काफी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। आप साहित्यकार हैं, आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आप सोशल कॉजेस के लिए काफी काम करते हैं, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आता हो कि ऐसा कुछ जो आपको बहुत ही लगे कि जिसमें बड़ा मर्म था और बड़ा इंसानियत का कोई उसमें भाव था जो आपको अभी तक याद हो? देखिए, एक रिश्ते पर वैसे मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर मेरी ग्रैंड मदर ने किया, और वो एक कृषक महिला थी उत्तराखंड की, और वो she lost her husband when she was 18 and a half at that age, and उन्होंने, और वो तब वो निरक्षर थी, and she retired as the principal of a school. आप सोचिए उस महिला ने कब पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद कब उसने अपने परिवार के, अपनी बेटी को पाला। My mother, who also retired as a principal of a college and learned music. She did her masters in music, and अभी भी मैं साथी हूँ उनके, जब मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैं बच्चा था, मैंने उनको ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि एकदम निस्वार्थ भाव से वो करती थी लोगों के लिए, और भूल जाती थी। सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है, जो ग्रेटर पीपल, जो ह्यूमन बीइंग्स मैंने लाइफ में देखे हैं, वो ऐसे हैं जो भूल जाते हैं बड़ी जल्दी करके, याद नहीं रखते, और ना याद दिलाते हैं कि याद है तेरे लिए मैंने ऐसा किया था। जब याद दिलाने की बात आती है, जब लेखा जोखा करने आदमी बैठता है, तो फिर गणित आ जाता है। और कुछ चक्कर ऐसा है कि गणित का और रिश्तों का कुछ साथ चलता नहीं है। 36 का आंकड़ा। हाँ, क्योंकि भावनाएं तो अलग उनकी तो एक अलग उपजाऊ भूमि है, एक अलग उर्वर भूमि है, वो किसी और जमीन पे से उगती है। भावनाएं वो गणित की जमीन पे नहीं उगती, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसलिए उनसे मेरे को मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनको क्लोजली ऑब्जर्व करता था, और उनके साथ हाथ पकड़ के उनके स्कूल जाता था। और क्या पूंजी थी उनकी? कुछ नहीं थी। उनके पास एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर थी, पर उनके चेहरे पर एक तेज था, और हम लोग ये सब मानते थे कि इन्होंने कह दिया है तो होगा, मतलब सच हो जाएगा। तो रिश्तों में एक दूसरी चीज होती है जिसे कहते हैं विश्वास। कहीं ना कहीं आपको विश्वास होता है। बच्चा अपने पिता पर विश्वास करता है, और वो कहता है बेटा ऐसा होगा, और वो चाहता है आज मेरे पिताजी ने कहा है तो ऐसा होगा जी। तो ये कुछ शर्तें हैं रिश्तों की, उनको तोलते रहना अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि तोलते मत रहिए रिश्तों, अपने आप स्वतः चलते। ये जो थिंकिंग है कि कीप एग्जामिनिंग, ऑल्सो अपेक्षाओं की कमी होनी चाहिए। क्या होता है कि जब आप एक रिश्ते पर बहुत केंद्रित हो जाते हैं, आजकल खासकर मैरिज रिलेशनशिप में आप देखिए कि वो काफी लोडेड लगती। ये हमारे देश की थिंकिंग नहीं है कि मैरिज में एक दूसरे को इतना अपेक्षाओं से लाद दो कि वो उसका दम निकल जाए। भाई एक आदमी इसमें कितना जूस निकालेंगे? इसीलिए एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रिश्तों की अलग अलग जरूरत है। आप माँ के साथ पास जाएंगे तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी आ जाएगी, आप चुपचाप बैठ जाओगे,
चाहे वो गलत भी कह रही है उसकी बात सुन लो। जी। पिता के पास जाओगे तो एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति बैठे, बच्चे के पास जाओगे आपका वात्सल्य उमड़ेगा, पत्नी के पास जाओगे आपका एक श्रृंगार और आपका एक दूसरे तरह का एक दूसरा डायमेंशन उसमें ऐड होगा। बहन के पास जाएंगे, मैंने बहन के लिए एक बार लिखा था कि शायद अगर हो तो मैं देखता हूं, तो बहन के पास जाएंगे आपको वहां एक अलग भाई बहन का रिश्ता होता है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, और ये सबका बुके जो है ना, वही एक स्वस्थ व्यक्ति की रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगा। वरना आप दम नहीं घुटना चाहिए रिश्तों का, ओवरलोड नहीं करना चाहिए उन्हें। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है। मेरी 2 छोटी बहनें हैं और मैंने ये लिखा था कि बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, तभी चुपके से दरवाजा खुला छोड़ देती है। पिता की नाराजगी में एक धीमा सा धागा जोड़ देती है। उसे मालूम होता है तुम झूठ बोल रहे हो और मुस्कुराकर उसे ढक देती है। तुम्हें पता नहीं हर बार वो तुम्हें खुद से आगे रख देती है। वो हार कर भी जीतती रही है तुमसे, जिससे कभी चोट नहीं लगती, ऐसी एक छड़ी होती है बहन अक्सर तुमसे बड़ी। आपका बचपन जो है वो प्रकृति के गोद में बीता उत्तराखंड में, और आपकी कविता में भी काफी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि आप नेचर के बहुत करीब हैं और काफी सारे नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। तो कितना प्रभावशाली था ये बचपन की यादें, आपके साहित्य जगत में कितना प्रभाव डालता? मुझे लगता है कि बचपन में जो आपके अवचेत रहती हैं वो सबसे ज्यादा, देखिए जब हम कहते हैं ना कि बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो उनके कोर्स में नहीं होता। उनके कोर्स में ये नहीं होता कि मेरे माँ बाप एक दूसरे से क्या रिश्ता था उनका, लेकिन आपको लगता है कि दूसरे कमरे में आप अगर माँ और बाप एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं तो वो बच्चा सुनता नहीं, वही बच्चे को शेप करता है। जो बाहर वो दौड़ता हुआ चिड़ियों के पीछे भागता है वो उसको शेप करता है। जो वो अपने एनवायरनमेंट में चारों ओर देखता है, उसको सेंसोरियली कंज्यूम करता है, वो उसको शेप करता है। तो मैं इस बात के लिए भाग्यशाली रहा कि पहाड़ों में मैं रहा, और मैं जैसे अपनी नानी का जिक्र कर रहा था कि भाई उनके घर में कभी ताला नहीं लगता था, उनका घर का दरवाजा वो सांकल लगाती और निकल जाती थी, और कोई भी पड़ोसी आता था घर खोल के बैठ के चाय वाय बनाने लगता था। तो मैंने देखा एक विश्वास बचपन से कि एक दूसरे पर विश्वास कि भाई घर ताला लगाने की क्या जरूरत है। ये कहीं ना कहीं आपके अवचेतन में बैठता है। दूसरा, प्रकृति आपको कभी छल करना नहीं सिखाती। एक नदी में जब आप उतरते हैं तो वो शुरू से आखिरी तक नदी रहती है, चाहे वो संघर्ष करवाती है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं कि नदी बीच में रूप बदल के पर्वत बन जाए और कहे कि आप चढ़ के दिखा। लेकिन जब आप शहरों में पलते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक बस में एक बच्चा चढ़ता है और देखता है वो उसने सोचा कि वो सीट में लूंगा, लेकिन वहां एक रुमाल आके गिर जाता है और कोई उसकी तरफ देखता है, कहता है मैंने ले लिया। तो एक दूसरे तरह का संघर्ष है, यह आपको दूसरी तरह से शेप करता है। लेकिन मेरा बचपन क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में गुजरा है, तो मेरे अंदर एक विश्वास की भावना है, और मैं पहले विश्वास करता हूं, फिर कभी अगर छल हुआ तो फिर अविश्वास की बात आती है। तो बचपन ने बहुत इम्पैक्ट किया, और जब जब मुझे ज़रूरत होती है तो नेचर मेरे रेस्क्यू के लिए आ जाता है। कि मुझे पहाड़ की धूप आ जाती है कि तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, उड़ चल कहीं बह चल कहीं, तेरी तो मंजिल है वहीं। तो इस तरह की या नदियों से मैं प्रेरणा लेता हूँ, हवाओं से प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि ये इटर्नल चीजें हैं। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो इटर्नल हैं। हम लोग क्या क्रिएट करेंगे बताइए? क्रिएटर तो कोई और था, जिसने क्रिएट करना था वो तो कोई और था। सब कुछ क्रिएट किया जा चुका है। मेरे पास तो सिर्फ एक वेंटेज पॉइंट है, आई कैन सी इट फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट। मेरा वेंटेज पॉइंट और आपका वेंटेज पॉइंट, हम सबका वेंटेज पॉइंट यूनिक है। दैट इज द यूनिक थिंग यू हैव, वेयर यू स्टैंडिंग एंड हाउ यू आर सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी यूनिक and unparalleled. That is absolutely yours.
बट नदी आपकी नहीं है। नदी तो रची जा चुकी है, उसका सृजक तो बहुत बड़ा सृजक है। तो सर्जना हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं करता हूं खुद को। आई एम नॉट द इलेक्ट्रिसिटी, आई एम जस्ट द वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस। मैं कभी अपने को इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझता हूं, मैं वो निमित्त मात्र हूं, वो वायर हूं जिसके थ्रू वो एक आइडिया फ्लो कर गया और उसको उस पूरे प्रोसेस में कहीं वाहवाही मिल गई, कहीं श्रेय मिल गया, लेकिन मैं अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझता। आपने वेंटेज पॉइंट की बात की, आपका एक एग्जांपल है जहां आपने नदी में बताया है कि एक आदमी नदी के अंदर है जी, कर रहा है और एक आदमी नदी के, जी जी, अच्छा याद दिलाया आपने कि नदी के अंदर जो व्यक्ति है उससे अगर आप पूछें नदी में तैर रहा है कि नदी क्या है, तो वो कहेगा नदी बहुत आक्रामक है, इट्स एन एग्रेसिव वेव, यस, यू नो, इट्स आई हैव टू फाइट, इट्स वेरी एग्रेसिव। बट एक नदी के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति, उससे पूछे नदी क्या है, वो कहेगा शांत बहती है, इतनी सुंदर है। दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। Why is it happening like this? Because there is a difference of vantage point. तो जिंदगी ऐसी ही है। जीवन की उस धारा को कहां और कब आपने एक्सपीरियंस किया, वो उसका एक्सपीरियंस टेल्स यू व्हाट एग्जैक्टली इट मींस टू यू। तो एक अक्सर देखा जाता है कि वैचारिक मतभेदों की बलि चढ़ जाते हैं रिश्ते। तो रिश्ते बड़े पुराने होते हैं, मगर वैचारिक मतभेद अगर थोड़ा सा भी हो जाए तो कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है रिश्तों को। तो कैसे बचाया जाए रिश्तों को इन वैचारिक मतभेदों से, कि हम वैचारिक मतभेद भले ही बनाए रखें मगर उनका असर रिश्तों पे ना आने दें? अच्छा सवाल है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होती है और बहुत जरूरी है कि वो हो। मैं हूं किस सफर में समझने तो दो, नया सच नजर से उतरने तो दो। वो आदमी स्वयं को समझने के प्रयास में उलझा हुआ है, आप उसे परिभाषित करने की जल्दी में हैं, आप उसे परिभाषित कर देना चाहते हैं, और परिभाषित करके शायद आप उसे दरकिनार कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता। आपको उसे कहीं ना कहीं लेग रूम देना होगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप शुरू से ही आप कहते हैं कि भाई मुझे मतलब ही नहीं है इस व्यक्ति को, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई जस्ट वांट टू। बट अगर आप ह्यूमैनिटी के बिलीवर हैं तो आपको लगेगा कि मैं एक तरफ इसको समझने का प्रयास तो करूं, और जब आप किसी को समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे परतें खुलती हैं और आपको शायद एक नया सत्य भी दिखाई दे सकता है। ये वैसे ही बात है जो व्यक्ति कह रहा है कि ये धारा जो है आक्रामक है, और आप उससे कहें नहीं यार नदी के बारे में आपके और मेरे विचार एक नहीं। आप, लेकिन सच बात यह है कि दोनों बात नदी की कर रहे हैं, शायद दोनों एक ही सत्य की बात कर रहे हो और अलग अलग तरह से कर रहे हो। तो वैचारिक मतभेद में कहीं ना कहीं अगर इंटेलेक्ट चाहता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे वैचारिक मतभेद समाप्त होने लगते हैं, और या समाप्त ना भी हो तो वो एक दूसरे की आंख से आंख तो मिला सकते हैं। और कहीं अगर बेईमानी है तो प्रॉब्लम है, ईमानदारी है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक कहा था कि देखिए हम जो जिस युग में हम जी रहे हैं, दिस इज द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। इतना एक्सप्रेशन आपने कभी नहीं देखा है कि सब लोग इतना सेल्फ एक्सप्रेस्ड कभी फील नहीं कर रहे। आप इतना जो भी कुछ कहना चाहते हैं सब कुछ आज बाहर आ जाता है, और ऐसे में आवश्यकता है कि हम जजमेंटल ना हो। जाहिर होकर जीना क्या है कि जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का, पूरा पूरा साबुत सच्चा नहीं, सत्य अधूरा सहने का। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे, चलो धूल हटाने चलते हैं पूरे मन से मिलकर सारे। मनशा लेकर बाहर आओ, बारिश है सब धुल जाएगा। हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा, लेकिन पूरा बहना होगा, जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं, तुम बार बार पट्टी बांधो पर दर्द छलक ही आते। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं, तुम बार बार पट्टी बांधो पर दर्द छलक ही आते हैं। बस अपनी शर्तों पर रिश्ते
यूं कब तक ये चल पाएगा? बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा? बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जिद छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी? उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद जबानी थी। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद पुरानी थी, याद जबानी थी। ईमानदार होकर सोचो, ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने? क्या पूरी पूरी कोशिश की? क्या उसको पहचाना तुमने? शायद आधी पहचान थे तुम, उससे एकदम अनजान थे तुम। ये रातों रात नहीं होता पैदा, जज्बात नहीं होता। चलो खुद से नजर मिलाते हैं, हर पक्ष सामने लाते हैं। जो उधड़ा है सीना होगा, जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन कविता। एक और एंगल से अगर हम रिश्तों को देखें और आपकी उसमें राय चाहेंगे, ये रिश्तों की जो मिठास है, इसमें पैसों की चाशनी की थोड़ी जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा हो जाए तो आदमी नहीं खा पाता, बहुत कम रहे तो फीका लगता है। तो कितना इम्पोर्टेंस आप देंगे? और आपने अपने किसी संस्मरण में बोला है कि जब मैंने पहली पुस्तक लिखी 17 साल की उम्र में, तो आपको लगा कि नहीं, ये लेखक बन के आजीविका कमा पाना मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, क्या रोल होना चाहिए पैसों का रिश्तों को बनाए रखने में और उनको मिठास बनाए रखने में? देखिए, पैसे जो है वो व्यावहारिक पक्ष है जीवन का, उसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। जैसे आप कहते हैं कि भोजन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। पर पैसे, मनी कैन नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ। मैंने पैसों के, वो पंत जी की कविता है, मैंने छुटपन में छुप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ लगेंगे। तो पैसे बोकर पैसे नहीं निकलते जब तक वो एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। किस लिए है, ये बहुत आवश्यक है। आज बहुत जरूरी है हम समाज में कितना पैसा से कैसा पैसा पर जाए। जी। जब हम कैसा पैसा पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैसों की अहमियत अपने आप एक हद के बाद खत्म हो जाएगी। उसकी एक जरूरत है, लेकिन उसकी जरूरत को हम जरूरत से ज्यादा हाफ करने लगे। देखिए, जीवन जो थे, जब पैसा एज ए ट्रांजैक्शन मेथड नहीं था तब भी जीवन चलता था। ये मत सोचिए कि आप इतिहास में जाइए, जब पैसे का जन्म हुआ था उससे पहले भी जीवन चलता था, उससे पहले भी रिश्ते जिंदा थे। रिश्ते पैसों से ज्यादा पुराने हैं जी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आदमी का जीवन एक दूसरे के लिए चल जाता था। तब भी लोग खाना खा लेते थे, तब भी लोग सोते थे, जागते थे और रिश्ते जीवित रहते थे। तो कहीं ओवर इंपॉर्टेंस हम मनी को देने लगते हैं बिकॉज वी वांट टू फ्यूअल कंजम्पशन। इट्स अ कंजम्पशन इकोनॉमी। सो इन द कंजम्पशन इकोनॉमी, व्हेन वी वांट टू ओवर फ्यूअल कंजम्पशन, देन वी स्टार्ट सेइंग कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये एंड इन इटसेल्फ है। जबकि इंसान को आप आंख बंद करके उससे सच पूछिए, क्या पैसा अपने आप में संपूर्ण है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि पैसा अपने आप में संपूर्ण है। आप कई लोग ऐसे देखेंगे जिनके पास पैसा है लेकिन उनको पता नहीं उनको खर्च क्या करना है। साथ साथ मुझे लगता है एक सेन माइंड के साथ पैसे की अहमियत को समझना और उन चीजों को प्रैक्टिकली हैंडल करना बहुत आवश्यक है, लेकिन उनको जरूरत से ज्यादा अहमियत देना और उनको रिश्तों को ओवरटेक कर लेना, वो सही नहीं है। और वो लाइन कहीं ना कहीं हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा कि पैसा एक जरिया है और उसको जरिया ही रहे। सर, एक रिक्वेस्ट है कई सारे लोगों की कि आपने एक कविता लिखी है जहाँ पे बेटी का संबंध जी काफी बारीकी से आपने टच किया है, उसके बारे में तो कविता। देखिए, आपने एक गीत मेरा सुना होगा। दरअसल ये बेटी की बात, अच्छा बाबुल, चलिए बाबुल भी सुनाता हूँ मैं आपको, माँ के ऊपर भी सुनाता हूँ। दो ये कविताएं इनकी आपने पहले भी आग्रह किया है तो मैं दोनों को सिलेबस का हिस्सा बना देता हूँ आज।
जी। एक तो आपने गीत सुना होगा, मैंने लिखा था कि मैं कभी बतलाता नहीं। 2-3 गीत मेरे बड़े प्रिय हैं। ये तुझे सब है पता है ना माँ, मैंने लिखा था ये गीत तारे ज़मीं पर फिल्म के लिए। और एक लुक्का छुपी एक गीत है जो मैंने रंग दे बसंती में लिखा था। ये सब गीत, और एक अभी हाल में लिखा नीरजा फिल्म के लिए, ऐसा क्यों माँ, वो भी सुंदर गीत है। मैं तारे ज़मीं पर के गीत का आपको याद दिलाता हूँ कि अभी याद होगा आपको, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। अब इसमें एक अंतर है, जी। कभी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूं मैं माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। अब मैंने ये जब लिखा तो इसके बाद मुझे कई पिताओं के खत आए कि भाई आपने पिताओं के साथ थोड़े नाइंसाफी कर दी, हम इतने बुरे नहीं हैं कि ऐसे झूला नहीं झुलाते हैं, और आप थोड़ा सा अन्याय किया आपने। तो मुझे लगा कि मुझे पिताओं के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई मैंने क्या अन्याय किया है। तो मैंने लिखा ये, और ये पब्लिश नहीं है, कि माँ की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मां की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है शायद। क्या पिता का दोष पिता होना है? क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान हूं। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं कई बार झुंझलाकर, चीखा हूं मां पर, पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया है। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता, या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा होता? ये एक्सप्लोरेशन है रिश्तों का, कि रिश्ते कहां से उपजते हैं और उनके पीछे क्या है। और मुझे लगता है कि मैंने तो पिता में भी कई बार मां देखी है। मां से ही ऊपर है ममत्व, और जब हम ईश्वर के पास भी जाते हैं तो मां को ग्रेट क्या बनाता है? ममत्व बनाता है, मां होने की भावना, द मदरनेस ऑफ गॉड। When we go to the Almighty, we do our prayers, we want Almighty to be mother to us, not the father to us. हमको उसका ममत्व चाहिए होता है। और जहां भी केयर और नर्चरिंग की बात आती है वहां ममत्व की बात आती है, और केयर और नर्चरिंग एक जीवन का अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोग बड़े नहीं होते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं कि और मदर्स वर नॉन वर्किंग विमेन। आप बताइए, बच्चों को बड़ा करना, संस्कार देना, खड़ा करना इस लायक कि वो जिंदगी से दो हाथ कर सकें, इसको आप नॉन वर्किंग कहते हैं? जी।
मतलब एनीथिंग विच इज नॉट पेड फॉर एंड मोनेटाइज, वही सवाल जो आपने पहले पूछा उस पर आ गए हम कि भाई इतना आप मोनेटाइजेशन कर रहे हैं कि वो माँ जिसने पूरा जीवन अर्पण कर दिया बच्चों को बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसने पे चेक नहीं लाती थी एवरी मंथ, यू कॉल्ड हर नॉन वर्किंग वुमन। तो काम की डेफिनेशन आपने करी है, द वर्क विच गेट्स पेड फॉर, दैट्स नॉट द वर्ल्ड आई रियली envisage I want to be part of. I think the world where the mothers are respected for what they do, and many of us, what we do for each other without expecting anything, is where the world will go. And in this lockdown, in this crisis, a lot of us are realizing the importance of true relationships. आजकल होम मेकर नाम हो गया है, आई थिंक नॉन वर्किंग की बजाय थोड़ा कुछ परिवर्तन। होम मेकर भी मुझे लगता है, मतलब किसी भी तरह का मेकर क्यों, मतलब इससे भी ऊपर एक कहीं एक स्थिति है जो जहां पर आपको यू डोंट हैव टू गिव नॉमेनक्लेचर, यू नो, कोई नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता नहीं, डिफेंसिव नहीं होना है उस चीज को लेकर। वो डिफेंस आ जाता है उसमें कहीं, वो उससे मुझे जी। तो सोशल मीडिया का जो इंटरफेरेंस है वो आजकल की दुनिया में रिलेशनशिप पे भी काफी ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया है। सोशल मीडिया हर जगह हावी है। तो आपको लगता है सोशल मीडिया की कोई एक सीमा रेखा तय करनी चाहिए, अन्यथा इसके कुछ परिणाम खराब हो सकते हैं? देखिए, जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबको एक्सप्रेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले अगर जिनके पास मीन्स हो। आज कम से कम डेमोक्रेटाइज तो हो रहा है। देखिए, मंचों का लोकतांत्रिकरण तो हो रहा है, बिल्कुल, मच नीडेड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ। उसमें आप कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आवाज आ गई साहब, ये आवाज तो गलत है। गलत तो सही नहीं है। देखिए, आवाज थी हमेशा से, मंच आपके पास था, उसके पास नहीं था जी। तो आपकी जो स्वर है वो तो मुखरित हो गया, लेकिन उसका स्वर मुखरित नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बाद जिसे तहजीब कहते हैं, कल्चर कहते हैं, वो पनपता है। मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया की जो शोर है, वो इसमें बहुत ज्यादा शोर है, और शोर बढ़ते 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 एक बार आदमी को ये खुद एहसास होने लगता है कि ये शोर है, मैं इससे आगे चाहता हूं। शोर में कौन जीना चाहता है? शोर में तो सबकी आवाजें खत्म हो जाती हैं। तो वो एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, ये होने ही वाली है। ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग। देखिए, जब हम लिखते हैं, मतलब पुराने समय की बात कर रहा हूँ कि आप लिखते थे, लिखकर आप फिर उसको सुबह, फिर रात को आपने लिखा, सुबह उसको पढ़ा, आपने कहा ये क्या लिखा मैंने, आपने फाड़ के फेंक दिया। लेकिन अब क्या है कि आप सीधे टाइप कर रहे हैं, आपने पोस्ट भी कर दिया। वो आत्ममंथन, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्टिव टाइम बिल्कुल नहीं। आपने उसे दोबारा पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई, आपने तो सीधे टाइप किया है वो। तो ऐसे में काफी कूड़ा कचरा बाहर आता है। तो मैं ये मानता हूं कि जिसे मांझना कहते हैं, जिसे काम करना कहते हैं, अपने मीटर पे काम करते हैं, वजन पे काम करते हैं, छन्नों पे काम करते हैं, उसकी गेयता देखते हैं, उसकी ध्वनि सुनते हैं, शब्द के साथ थोड़ा एक रिश्ता बनाते हैं, उसकी आवश्यकता फिर से आएगी। आप कुछ भी कहें, आप उन गीतों का जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार मुझसे वो कविताएं सुनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो तराशी गई है, उस तरह से लिखी गई। मैं कभी भी सेल्फ एक्सप्रेशन को नीचे नहीं रख रहा हूं कि भाई कोई अगर कहना चाहता अपनी बात कहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट है वो बैकसीट ले लेता है इसमें। और क्राफ्ट के लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी होता है, एक सांस गहरी लेने की आवश्यकता होती है। वो दम ले घड़ी भर, वो घड़ी भर चाहिए, वो जीवन के लिए भी चाहिए। जी सर, वक्त इम्तिहान लेता रहता है रिश्तों का जी। और असली रिश्तों का इम्तिहान जब होता है तो कुछ रिश्ते बचे रहते हैं, कुछ टूट जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिश्तों को वक्त के इम्तिहान में मदद करती हैं कि वो पार कर जाएं?
क्या ऐसी खूबियां होनी चाहिए एक रिश्ते में? मैंने कहा सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए और सबसे पहले इंटेंट होना चाहिए। आपकी मंशा होनी चाहिए कि आप रिश्तों को बचाएंगे। हमारे अपने जो लोग होते हैं वो उतार चढ़ावों से जीवन में गुजरते हैं। वो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे जैसे चल रहा है, और जिंदगी की परीक्षा की घड़ियां आती हैं और उस पर कमजोरी की घड़ियां भी आती हैं, वल्नरेबिलिटी जो होती है। आप स्वयं को भी इतना कंप्लीट मत बनाइए कि आपके अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। याद रखिए, जब आपकी आंखों में एक कतरा आंसू होता है तभी आपको दूसरे का कंधा मिलता है। तो हम लोग कई बार स्वयं को इतना कंप्लीट वेल राउंडेड बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा है पिताओं के साथ ऐसा होता है, कई बार। बट आप देखिएगा, द बिगेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव सर्टेन, द रियल पीपल हैव सर्टेन वल्नरेबिलिटी। मैं कहां से प्रवेश पाऊं आपके अंदर? मेरी आंखों में एक आर्द्रता होती है, मेरे स्वर में कहीं ना कहीं एक क्रैक, कहीं ना कहीं एक दरार और भर्राया ओपन होता है। वही दूसरे व्यक्ति को कहता है यार इसे मेरी आवश्यकता है, और उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं संकेतों को पढ़कर कोई किसी को गले लगाता है। वो वल्नरेबिलिटी रिलेशनशिप में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए ना। अगर आप एक ट्रू रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ भी हो, उसमें अगर आप वल्नरेबल नहीं हो सकते तो आप ट्रू रिलेशनशिप में नहीं है, फिर आप नाटक कर रहे हैं। आपने एक कविता लिखी है जिसमें आपने कविता की परिभाषा दी है। जी। एक बड़े मशहूर साहित्यकार उन्होंने लिखा था कि कविता लिखना कोई पीड़ा नहीं है, जिस कविता में मानवता की पीड़ा नहीं है, और जिस कविता में इंसानियत का दर्द नहीं है, और जिस कविता में जमाने की गर्द नहीं है, वो कविता नहीं है। तो कविता क्या नहीं है उन्होंने बताया था, आपने बताया कि कविता क्या है। तो अगर आप वो कविता एक बार सुनाएं जहां आपने कविता को परिभाषित किया है। कि क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या भाषा को मेहनत के लिए उकसाना है कविता? क्या समाज को जगाना है कविता? क्या कुछ बताना, कुछ छुपाना और बिन कहे सब कुछ कह जाना है कविता? या कुंठाओं की खरपतवार के बीच एक विचार अंकुर का सर उठाना है कविता? या कुंठाओं की खरपतवार के बीच एक विचार अंकुर का सर उठाना है कविता? या फिर संवेदनाओं के दीप को शब्दों की ओट में तूफानों से बचाना है कविता? या इतिहास जिसे भुला दे, राजनीति जिसे नजरअंदाज कर दे, उस मासूम से सत्य को जिंदा रखना है कविता? शायद और बहुत कुछ है कविता, और अगर सरलता से सोचें तो शायद 2 घड़ी ठहर कर जिंदगी की नदी को बहते हुए देखना है कविता। बहुत सर, बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं मौके पे पल्लव, आप एक Q&A में जो क्वेश्चंस आए उनके जवाब सर से मांगने। थैंक यू अमित सर। फर्स्ट थिंग, बेहद ही खूबसूरत 1 घंटा निकला है। प्रसून सर, आपको मैं बिना बाबुल, मेरे तरफ से सिफारिश रहेगी बस का बाबुल आप सुना दें। तो ये एक गीत है, एक लड़की अपने पिता से कहती है, शायद उसकी शादी हो रही है तो उसने कभी बात नहीं की है, तो मैंने ये फोक स्टाइल में लिखा है, उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया है। बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल मोरी
इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सुनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए बाबुल, जिया मुरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए बाबुल, जिया मुरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबुल, जिया मुरा घबराए। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। अंतिम में मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, लुका छुपी आपने लिखी है एंड मेरे ख्याल से बहुत लोगों में यहाँ पे लुका छुपी लोगों का फेवरेट गाना है। लता दीदी ने बहुत ही शानदार तरीके से गाया, उसको कोई इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लुका छुपी एक बार सुना सके तो बहुत अच्छा लगेगा। लुका छुपी मैं पढ़ देता हूँ इसमें काफी, क्योंकि मेल फीमेल पिक्चर्स का अलग अलग है। मैं डेफिनेटली आपके लिए इस गाने को इसका मैं वो भी बताऊंगा आपको, हल्का सा बैकग्राउंड भी की कि लुका छुपी कैसे गीत बना था। ये एक्चुअली ये गाना फिल्म में था नहीं, फिल्म वाज ऑलवेज कंप्लीट विदाउट दैट सॉन्ग, एंड देयर वाज अ सीन कि उसमें बेटे की डेड बॉडी आती है, माँ उसके सामने चिता के सामने खड़ी है, वहां पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक था। तो रहमान साहब ने ये धुन उसमें गुनगुना कर बताई थी कि ला 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 दर 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 रा। तो मुझे ऐसा सीन आया मन में कि माँ और बच्चा जो है वो हाइड एंड सीक लुका छुपी खेल रहे, और बच्चा छुप गया है कहीं, और वो ऐसी जैसे जगह छुपा है जहां से वो कभी आ नहीं सकता वापस। और माँ उससे कह रही है कि लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहां कहां ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी मां, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। वो कहता है क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहां है यहां सपनों वाला, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है मां, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, आजा। फिर वो मां कहती है आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। तेरी राह तके अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया, तेरी राह तके अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया। फिर वो कहता है कि कैसे तुझको दिखाऊं कहां यहां है क्या, मैंने झरने से मां पानी तोड़ के पिया है, गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है, छाया लिए भली धूप यहां है, नया नया सा है रूप यहां सब कुछ है, मां फिर भी लगे बिन तेरे मुझको अकेला, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। तो एक ऐसा अंतहीन लुका छुपी का खेल मेरे जहन में आया कि जिसका कोई अंत नहीं है, और इस मां की क्या व्यथा है जो अपने बच्चे को अभी ढूंढ नहीं सकती, और बच्चा कहीं एक इटर्नल जगह में है। इट्स अ लिटिल टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो इन दिस। इट इज आई थिंक कि झरने से तोड़ के उसकी
धारा को पकड़ के उसको तोड़ना, उसको पीना, उसके metaphors which I was using here are also very ethereal kind of a world where you get transported into the world where the child is. And of course I'm calling it a good place. I'm calling it, if you have a concept of heaven or whatever, it is that kind of place. But even वो स्वर्ग जो है, वो स्वर्ग अधूरा है, because यहाँ भी मुझे तेरी कमी खलती है माँ. सब कुछ यहाँ पे ऐसा ही है. यहाँ पे कोई पतंग नहीं काटता मेरी. देखो बच्चे के लिए होता है कि पतंग नहीं उसका काट रहा कोई, वो उड़ रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी there is something missing here. And I'm telling you, a lot of the letters I receive from NRIs and the boys who work abroad, they write to me about this line, यहाँ सब कुछ है माँ फिर भी लगे मुझे बिन तेरे अकेला. इस पर वो काफी लिखते हैं और बात करना चाहते हैं. अमित भाई. प्रसून सर, थैंक यू. आप जिस प्रकार से अमित बसु चेस्ट हिंदी में बात करते हैं, वैसे हम बॉम्बे पूना वाले लोग आरेला जारेला ऐसे बोलते हैं. सो नहीं, अमित बासु जी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मैं तो उनको धन्यवाद करना ही भूल गया, वो स्क्रीन से चले गए. बट नहीं, आप लोग सभी, उनका खासकर रियली टॉक ग्रेट थिंग्स. अभी अच्छा है उनकी ग्रीन हो गई. आपके लिए बस बिफोर ही क्लोजेस एंड डज द वोट ऑफ थैंक्स, सर, आंखें आंसुओं के सामने, दिल दिमाग के सामने, जिंदगी मौत के सामने, इंसान अभी कुदरत के सामने, और शब्द प्रसून जी के सामने बेबस है. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत धन्यवाद. और जो आपका ये फिलॉसफी भी है पीछे, क्रिएटिंग हैप्पी इन्वेस्टर्स, और आप जो शायद बात करते हैं, मैंने पैसों की बात की कि पैसों को जिंदगी से ज्यादा अहमियत न दें. और one of the campaigns I actually very actively worked is the priceless campaign for Mastercard, where I always liked that thing about it. I think आप लोगों ने भी वही राह पकड़ी है, और पैसे जरूरी हैं, और उनको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उसका प्रयोग करते रहे तो जीवन शायद ज्यादा सुंदर रहेगा. एक सवाल सर हमारे पास आपके चाहने वाले हैं, कैलाश कुलकर्णी, CEO ऑफ L&T. कैलाश जी कैसे हैं? नमस्कार आपको. बहुत सर, ऑलवेज ग्रेट टू लिसन टू यू सर. आपको ऐसा है ना, आपको एक ऐसा इंजेक्शन हो जो आपकी बातें सुनने के बाद पूरा 1-2 हफ्ते तो ऐसे ही हम लोग 120 के स्पीड से चल लेंगे, स्पेशली कोविड टाइम में. तो ऐसा है सर. 2 छोटे सवाल है, और एक सवाल एक्चुअली इतना बढ़िया माहौल बनाए, पर मैं जरूरत करूंगा वो गलत सवाल. बताइए ना, बताइए. कि जब भी हम लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमारे कभी भी हम बोलते हैं यार चल मिल ले, तो एक चीज रहती है यार, समय नहीं है यार बिल्कुल. और एक्चुअली हम लोग एक ही जॉब करते हैं, एक ही काम करते हो, आप 5-6 चीजें एक साथ करते हो, आप कहाँ से समय निकाल लेते हो? और हमें कुछ सिखाइए कि कैसे समय निकाला जाता है. आई थिंक द पीपल हु आर इन लव हियर, दे विल टेल यू वन थिंग. देखिए, जब आप इश्क में मुब्तला होते हैं और आपको अपने लवर के लिए टाइम निकालना होता है, पता नहीं कहाँ से पहुंच जाते हैं आप उसके दरवाजे पर. पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? साइकिल वाले साइकिल पे पहुंच जाते थे, उनकी साइकिल की चेन वहां पे खराब हो जाती थी, वहां पहुंच जाते थे. और आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखिए, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से रात के 12 बजे 1 बजे फोन लगा देते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं. आप ये बताइए, जिस चीज को आप प्यार करते हैं उसके लिए वक्त आप निकाल लेते हैं, वो वक्त उसको निकाल लेता है. इट्स जस्ट दैट हाउ इंटेंसली यू वांट. इफ यू इंटेंसली वांट समथिंग, यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम. और मैं कोशिश ये करता हूँ कि द प्रोजेक्ट्स आई डू, लॉट ऑफ पीपल इन बॉलीवुड एंड फिल्म इंडस्ट्री फील दैट आई शुड बी डूइंग मोर प्रोजेक्ट्स, एंड कई फिल्में मैं डिक्लाइन भी कर देता हूँ, नहीं करना, मेरे पास वक्त नहीं है. या मैं मानता हूँ कि एक प्रोजेक्ट अगर आपको खुद ड्राइव करे, मेरे लिए सरदर्द ना हो, वो खुद को इतना मोटिवेटिंग हो. जब मैं तारे ज़मीं पर जैसी फिल्म पर काम करता हूँ, तो उस वक्त मेरी छोटी सी बेटी थी, और मुझे तो बहुत ही कि देखो इन्हें, यह ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसने फिसल के. ये मैं लिख नहीं रहा था, इसका निमित्त बन रहा था. वो आई वाज सीइंग माय डॉटर प्ले इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक अगर वो आपकी जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आप प्रेम करते हैं, आई थिंक द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर पेरेंट्स इज टू फाइंड आवर चिल्ड्रन समथिंग दे लव. इफ दे लव डूइंग दैट, ग्रेजुअली आपके पास वक्त की प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप वक्त निकल आता है.
जिन चीजों को आप प्यार करते हैं उनके लिए वक्त निकल ही आता है। सर एक रिश्ते के ऊपर एक सवाल था छोटा सा। कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ रिश्तों को ज़्यादा क्या बोलते हैं फूलने के लिए थोड़ी दूरी रखना ज़रूरी होता है। तो कभी आपको लगता है ऐसा है कि या अच्छा बहुत ही करीब घनिष्ठ रिश्ता रहेगा तो हमेशा उनके साथ बातचीत करना चाहिए, या क्या क्या करना चाहिए ऐसे समय में? अरे देखिए, रिश्ता खुद बता देता है। अगर आप अपने आप बता देते हैं, अंदर से आवाज आती है, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? इतने सारे मतलब इतने प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं, इतने खूबसूरत और डेलिकेट होते हैं। आप बस एक ही चीज मैं समझता हूँ, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते रहिए, वो आपको बताएगी। और दूसरा, मैंने शुरुआत में अमित जी से कहा था कि इंटेंट क्या है आपका। आपकी मंशा अगर रिश्ते को जीवित रखने की है तो वो जीवित रहेगा। और याद रखिए, छोटे छोटे कोमल पौधे होते हैं रिश्ते, और जीवन की जो कटु सत्य होते हैं वो जूते हैं, बिल्कुल खतरनाक जूते, जिनसे कुचल सकते हैं आप कभी भी। वो कोई मुश्किल नहीं है रिश्तों को मारना, बहुत छोटे छोटे अंकुर हैं वो, उनको नर्चर करना पड़ता है। और नर्चर करने के लिए पानी देना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनको धूप दिखानी पड़ती है। अगर आप इच्छुक हैं रिश्तों को पल्लवित होने देने में, इफ यू रियली वांट them to blossom, you will see, you'll have to do, and the intent will guide you. वो अपने आप आपको बताएगा कि क्या करने की जरूरत है। थैंक यू। We have with us Mr. Ajit Menon, who is CEO of PGIM India. Ajit sir is also a brilliant singer. Apart from being in the corporate world, he sings brilliantly. Ajit sir, your question, please. Thank you for that kind introduction, Prasun. It was wonderful listening to you. बहुत मजा आया। एक क्वेश्चन, ये जो कोरोना वायरस के वजह से जो हम घर पे फंसे हैं, तो बहुत सारे पुराने हॉबीज निकल के आए, कुछ गाने की, कुछ फैमिली के साथ गाने की, कुछ पुराने स्केचेस जो करते थे वो सब बाहर निकल के आए हैं। और रेगुलर वर्क के टाइम पे तो शायद इसका सब अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है, बट आई एग्री विथ यू, इसके लिए जब प्यार और पैशन होता है तो शायद टाइम निकल ही आता है। माय क्वेश्चन दो इज ऑन क्रिएटिविटी। आज बच्चों के लिए जो है, हम लोग इतने सारे ही हम लोग पेरेंट्स वी वरी अबाउट आवर किड्स एंड देयर फ्यूचर, और कहीं इस बीच क्रिएटिविटी के लिए जगह बनाना, what would be your advice? Because normally the educational system जो है वो तो एक hierarchical या वो British system जो इंडिया में चलती आ रही है, it is to sort of just not really get into things like dance and drama and creativity as much. तो creativity का importance और creativity को जगाए रखना, उस पे आप कुछ अगर I think बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है जिंदा रखना। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, क्रिएटिविटी एक लग्जरी हो गई है, एक लग्जरी हमने उसे बनाया। हम उसको समझते हैं कि जब सब चीजें बाकी हो जाएंगी उसके बाद, भाई वो सांस लेने जैसी चीज है। आप ये कहेंगे बाकी सब जब कर लेंगे उसके बाद सांस लेंगे। मुश्किल ये है कि अगर आप उसको रिदमिकली, आप देखिए साउथ ऑफ इंडिया में जाइए, मैं काफी मेरे मित्र हैं और मैं देखता हूँ कि वहां पर it's almost like given that some craft or art the person has practiced, a lot of my friends, but से वो गाना शुरू करते, मैंने कहा अरे आपको पता कैसे शुद्ध सावेरी राग है? तो बोले नहीं, ये तो हमें बचपन में सिखाया गया था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपके अवचेतन का हिस्सा है वो चीजें, और आपको उन चीजों से जीविकोपार्जन की आवश्यकता नहीं है। भाई मैं गाता हूँ, कई बार लोग कहते हैं अरे आप प्रोफेशनली, मतलब एवरीथिंग अनलेस इट्स कन्वर्टेड इनटू मनी हैज नो वैल्यू। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि कई चीजें ऐसी हैं जो प्राइसलेस हैं, वो जीवन में होनी ही चाहिए। जब क्रिएटिविटी आपके बच्चे के जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी, रिदमिकली हिस्सा बन जाएगी, एंड इट विल नॉट स्टे अ लग्जरी और अ हॉबी एज वी से। हॉबी क्या है? आप बाथरूम में से निकलते हैं, गाते हुए निकलते हैं, गुनगुनाते हुए निकलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, एक स्वाभाविक रूप से क्रिएटिविटी आपके जीवन का हिस्सा है। लेकिन हम उसको अस्वाभाविक बना रहे हैं, हम उसको पीट पीट के हॉबी क्लासेस में भेजते हैं, और
वो जो चीज जो उसको जिससे उसे प्रेम करना चाहिए उसको भी वो कड़वी दवाई की गोली समझने लगता है। अरे देखो फिर मुझे भेज दिया जा रहा है गिटार बजाने के लिए। अब बताइए, वो स्वतः ही गिटार बजा लेता, आपने उसको गिटार की जो कैप्सूल बना के दी है ना वो उसको पसंद नहीं है। तो don't try and make capsules of creativity and give to people. Don't convert it into a task that it has to be part of your life because it should be, why shouldn't you know kind of thing. It is very much part and parcel of your being. Thank you so much. Thank you so much. We have a question from Mr. DP Singh. DP sir, you're online. DP sir is the CMO at SBI. DP sir, you're online. DP sir? I think there's some problem. Paresh bhai, you had a question. Paresh bhai, आप पूछ सकते हैं. प्रसून जी, आपने कई रिश्तों की बात की, जैसे माता के साथ, पिता के साथ। ये सारे रिश्ते तो हमको जन्म से मिल जाते हैं। एक रिश्ता होता है जो दोस्ती का, जो हम खुद चुनते हैं जी। उसके ऊपर आपने अगर कुछ लिखा हो। हाँ, तो एक गीत आप देखिए, आपने बहुत मेरे को अब एक मौका दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि क्या होता है जो पिक्चरें, जो मेरे गीत हिट नहीं होते हैं उनको सुनाने का मौका तो कम मिलता है। तो मैंने एक लंदन ड्रीम्स फिल्म के सॉन्ग्स लिखे थे बहुत पहले, और उसमें एक सॉन्ग लिखा था, मैंने एक गीत लिखा था दोस्ती के ऊपर। मैं आपको धृत करता हूँ उसे। बेसिकली अगर आप पुस्तक को पढ़ें तो उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि कैसे ये गाना बना। ये दुनिया जब ले के तराजू तेरा तोल के भाव बताए, यार कहे आ सीने से लग जा दुनिया भाड़ में जाए। दो कहां है एक ही है, दो कहां है एक ही है, यारी में तो होते ही नहीं। इसको काटो दर्द उसको, यारी में तो होते ही नहीं। वो कच्चे गुड़ सी है यारी, वो मीठे पानी से प्यारी। तो आजा जश्न मना ले, यार को गले लगा ले। दिल के अंधेरों को वो टटोले, दोस्त की बात हो रही है। दिल के अंधेरों को वो टटोले, मन को बिलो दे मथ डाले खोले। मन, दिल के अंधेरों को वो टटोले, मन को बिलो दे। बिलोना जानते हैं आप? जैसे ये दही को बिलोते। दिल के अंधेरों को वो टटोले, मन को बिलो दे मथ डाले खोले। यारा, यारी बिना है बेसुरी मेरी जिंदगी, यारी बिना है बेसुरी मेरी जिंदगी। मेरी हिचकियों में वो शामिल, मेरे ख्वाबों में, मेरे मौसमों में वो तितलियों को छोड़े। मेरे आंसुओं को मोतियों सी शान बख्शे वो, मेरी बांसुरी में आके सांसें जोड़े। वो कच्चे गुड़ सी है यारी, वो मीठे पानी से प्यारी। तो ये जो गीत है, ये मैंने आई डेडिकेटेड दिस कि ये दुनिया जब लेके तराजू तेरा तोल के भाव बताए, यार कहे यार सीने से लग जा दुनिया भाड़ में जाए। सो ये इमोशन जो दोस्ती का होता है वो अलग किस्म का होता है। और आप कई चीजें अपने दोस्त से शेयर करते हैं जो शायद और मुझे अभी भी लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्ती के ऊपर कम काम हो रहा है और दोस्ती के ऊपर कम गीत बन रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसा जीवन का एक रिश्ता है जो एज यू सेड कि भाई ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है और उसके बावजूद बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। और कई चीजें, कई एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर उठ के ये रिश्ता है। इस पर थोड़ा काम होना चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड में। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल बिट इग्नोर्ड इन आवर टाइम्स। As they say, there is no relation, there are no rules in friendship, right? So, जी 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 बिल्कुल, इसमें कोई रूल्स, आचार संहिता नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, रूल्स नहीं है। सर एक आपने एक लड़की पे गीत लिखा है सर, एक गर्ल चाइल्ड पे, कि जब वो ओलंपिक से जीत के आई थी तो आपने एक रिक्वेस्ट आई है एक क्लाइंट से कि अगर आप वो गीत सुना सके। जी, ये गीत शायद आप, गीत तो नहीं है, ये मैंने लिखा था जब ओलंपिक में जीत के आई थी कि ये हम सबको शर्म आनी चाहिए जो लड़कियों को कम समझते हैं, कि शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया।
शर्म आ रही है ना उस पिता को जिसने उसके होने पर एक दिया कम जलाया। शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को। शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा। शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा। शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को। शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा। शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न। शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को। शर्म आनी चाहिए हर ऐसे विचार को, शर्म आनी चाहिए जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को, शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए शायद हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी, तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल, और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था, और सुबह होके रही। जब भी मैं सुनता हूँ ये, वो रोंगटे हर बार खड़े हो जाते हैं सर। थैंक यू सो मच। राधिका गुप्ता जी हैं, शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट राइट नाउ फॉर सम रीजन। उन्होंने पूछा है कि आप जब रूबरू लिखे, आप रंग दे बसंती का जो गाना है रूबरू, तो आप क्या सोच रहे थे कि रूबरू लिखते समय? मेरे को एक ही इमेज थी, सूरज को मैं निकल गया। ये अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। अमित सर, यू हैड अ क्वेश्चन। सर, एक जाते जाते आपकी एक अमित, एक सवाल सर से था कि सर पहले जब रेडियो पे हम गाने सुनते थे या अमीन सैनी साहब होस्ट करते थे, तो हमेशा लेखक जो शायर है उस पे काफी मतलब डिस्कशन होता था कि किनके गीत है ये, इतिवर साहब ने लिखा हुआ गीत है, या मदन मोहन साहब के सभी गाने जो हैं वो राजा मेहंदी अली खान के सभी बहुत अच्छे रहे। तो आजकल जब रेडियो पे आप गाना सुनते हैं तो एक तो वो गाना आधा ही बजाते हैं, उसमें 50 ऐड होती हैं, और उसमें कभी जो लेखक है वो गाने का उसका जिक्र भी नहीं होता है। देखिए, ये शायद हम लोग ने थोड़ा सा प्रकृति का जो हम पर अभी कहर टूट पड़ा है, कई चीजें इसमें बहुत दुखद हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी जल्दी में आ गए थे कि जल्दी से मोटी बात बताओ यार। आपने सुना होगा मोटी बात बताओ यार। मोटी बात क्या है? मोटी बात इतना ज्यादा बड़ा फ्रेज हो गया था कि वो बारीक बात कहीं सफर करती, और जो शायर होते हैं, थॉट जो होता है, विचार जो होता है, वो बारीक बात होती है। तो शुरुआत में तो आप भाई 2-4 बीट सुनते हैं, और उसके बाद 2 तरह के संगीत होते हैं, एक से आपके पैर झूमते हैं, एक से आपका सिर हिलता है। तो पैरों से सिर तक पहुंचते पहुंचते जो है संगीत दम तोड़ देता है। आज इतना वक्त ही नहीं किसी के पास। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे एक ठहराव जब समाज में होता है, ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज दैट वी आर इन अ हरी। एंड जब आप जल्दी में होते हैं तो आप थॉट के लिए कहाँ वक्त होता है आपके पास। आप तो मोटी बात सुनना चाहते हैं, और मोटी बात इसलिए 2 लाइन में, और गाने भी अब जो बनने लगे उनमें मुखड़े के बाद अंतरे में क्या कहा गया है उसकी कोई बात ही नहीं करता। एक फ्रेज अटक गया उसके साथ। और गाने की अहमियत देखिए, हम लोगों ने जो गीत सुने हमारे देश में, उसने हमारी जीवन की फिलॉसफी को हमें जिंदा रखा है। पॉपुलर किसी और देश में आपको शायद ऐसा ना मिले जहां पर इतने मकबूल शायर फिल्मों के लिए पॉपुलर कल्चर से जुड़े हुए थे। आप सोच नहीं सकते कि लॉर्ड बायरन जो है वो लिख रहे हैं कोई पॉप गाना, पर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि बड़े शायर साहिर साहब लिख रहे हैं, बड़े कवि लिख रहे हैं, बच्चन साहब लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे कवियों ने, बड़े बड़े लेखकों ने अपने को जोड़ा, और लाइफ की फिलॉसफी इन गानों से निकलती थी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये
हमारे यहाँ पॉपुलर म्यूजिक का गाना है, ये हमारे यहाँ कोई साहित्य का गाना नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि प्योर चेस्ट पोइट्री की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कल्चर था, और ये दुखद है कि वो कल्चर कम हो रहा है। उसके लिए मैं सिर्फ इंडस्ट्री को या लोगों को जिम्मेदार नहीं मानता, हमारा समाज ही ऐसा हो गया है जो बहुत हरी में है, जल्दी में है, और जल्दी में विचार कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, और जो ऊपरी मसाला होता है वो ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिल जाती है। साहिर साहब ने तो भगवान को बोल दिया था कि आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आज तक मुझे देखता है कम। अमित, यू मे वांट टू कंक्लूड? या तो हमने जहाँ से शुरू की थी बात सुन जी, वहीं पे वापस आते हैं कि आज के दौर में जो परिस्थितियां हैं वो काफी विषम है। किसी ने कहा था कि वो दिखाई ना दे ये तो मुमकिनात में है, वो सब वजूद में है जो कुछ तसव्वुरात में है। आपने एक कविता लिखी है, आई थिंक उसके साथ ही हम लोग इसको फिनिश करें तो बड़ा अच्छा होगा। मुमकिन है जी, प्रेरणादायक कविता है, और उसमें जो मैसेज है वो सबके लिए हर समय वैलिड रहेगा। तो उस कविता के साथ इसका समापन किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी, मैंने आपसे पहले भी कहा, ह्यूमन स्पिरिट इज अनपुट डाउनेबल, एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ सॉन्ग विद आर रहमान राइट नाउ वेयर आई एम टेकिंग दिस थॉट फॉरवर्ड। आई होपफुली यू वुड हियर द सॉन्ग इन फ्यू वीक और सो। और ये मुमकिन जो कविता है, ये है कि बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचे आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना, बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ भिगोना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुन जी, आपने जो इस समय हम लोग को दिया, और ये जो बातें हैं वो काफी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी हम लोगों के लिए, और ऐसा मौका फिर आए इसकी हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं, और आपसे अनुमति चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। May God give you the strength to fight, and we will fight it. Thank you. Thank you so much. And thank you so much for attending. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.